بھارت نے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب اور ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب پہلے سے بپھرے دریائے چناب سے خوفناک سیلابی ریلا ملتان ڈویژن میں داخل۔ دریائے راوی کے ہیڈ سدنائی پر مائی صفورہ بند کو بھی بم سے اڑا دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پانی چھوڑنے سے متعلق پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارت نے دریائے چناب میں اخنور کے مقام سے پانی چھوڑا۔ ایڈمرالہ پر پانی کا شدید دباؤ آ سکتا ہے۔ ایڈمرالہ سے ہیڈ خانقی کے درمیان پانی کے شدید دباؤ کے باعث گجرات اور وزیر آباد کے اطراف دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ ڈی جی پی ٹی ایم عرفان کاچیا کے مطابق حریق زیریں اور مناور طوی میں اونچے درجے کا سیلابی صورتحال ہے۔ سول انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر متعلقہ محکمے الرٹ ہیں۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ 5 دریاؤں کے سنگم پر واقع علی پور کے ہیڈ پنجنت پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سیلابی ریلا ہیڈ پنجنت سے گزرے گا۔ ہیڈ سدنائی کو بچانے کے لیے مائی صفورہ بند توڑنے سے کبیروالا کے 30 اور پیر محل کے 12 دیہاتوں کو خطرات لاحق۔ لودھرا اور بہاولپور کے 3 بند ٹوٹ گئے۔ خانوال کی تحصیل کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر دریائے راوی میں سیلابی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ سیلابی ریلا ریلوے لائن کے اوپر سے گزرنے لگا۔ خانوال تا فیصل آباد ریلوے سیکشن عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ بہاڑی میں 65,000 سے زائد آبادی متاثر۔ تاندیا والا میں 30 دیہات زیر آب آ گئے۔ چشتیہ میں بڑا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ مظفر گڑھ کے قریب چک فرازی میں 25 افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ متاثرہ افراد فش فارمرز کو بچانے میں مصروف تھے کہ اچانک ریلا آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ دریائے چناب کا بڑا ریلا ملتان میں داخل۔ اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح 4 فٹ بڑھ گئی۔ ہیڈ محمد والا پر شگاف کے لیے بارود لگا دیا گیا۔ بڑا ریلا 5 ستمبر تک پجرت پہنچے گا۔ پانی کے بڑھتے دباؤ کے باعث ہیڈ محمد والا روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ بستی نور محمد میں کئی خاندان منتقل نہ ہو سکے۔ پیر محل کی بستی بہار شاہ کے قریب ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سیلاب نے چنیوٹ اور جھنگ میں تباہی کی نئی داستان رقم کر دی۔ چنیوٹ پہ 150 اور جھنگ میں 261 دیہات زیر آب۔ مظفر گڑھ میں رنگپور کے مقام پر 24 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ شہر کو خطرے کے پیش نظر ہزاروں افراد نقل مکان۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے پر قصور کے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے انخلا اور امدادی کارروائیوں میں معاونت کے لیے پاکستان نیوی بھی میدان میں آ گئی۔ تلوار پوسٹ پر امدادی کیمپ قائم۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری۔ ترجمان پاک نیوی کے مطابق اہلکار متاثرین کے انخلا کے لیے فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دریائے راوی میں ٹھٹا چاکر کے مقام سے سیلابی ریلے سے کھڑی فصلیں اور مکانات تباہ۔ ہزاروں ایکڑ اراضی پر کاشت فصلیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ تاتار اور محرقہ آبادیاں شدید متاثر۔ متعدد گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے سے لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ گجرات میں مسلسل 14 گھنٹے کی شدید بارش کے باعث اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ شہر کے بیشتر علاقے 4 فٹ تک پانی میں ڈوب گئے۔ بارشی پانی گھروں، دکانوں، قبرستانوں اور سرکاری دفاتر میں داخل۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف۔ دریائے چناب میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث کالووال میں بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی قریبی گاؤں میں داخل۔ دریائے چناب میں مسلسل بڑھتے ہوئے پانی کی سطح نے متعدد دیہات کو ایک بار پھر خطرے سے دوچار کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ ایڈمرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 4,68,638 کیوسک اور اخراج 4,61,168 کیوسک ریکارڈ۔ ماہرین کے مطابق اگر بارشوں کا سلسلہ برقرار رہا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ پی ٹی ایم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 5 ستمبر تک بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں سے سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان۔ دریائے چناب ہیڈمرالہ پر پانی کا بہاؤ 4,68,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ ہیڈ خانقی پر 3,39,000 کیوسک۔ ہیڈ قادر آباد کا پانی کا بہاؤ 2,32,000۔ دریائے چناب میں ہیڈمرالہ خانقی بیراج اور قادر آباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ محکمہ انہار کے مطابق خانقی ہیڈ پر پانی کی آمد اور اخراج دونوں 4,21,270 کیوسک ہیں۔ قادر آباد بیراج پر پانی کی آمد و اخراج 3,25,566 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ تشویشناک قرار۔ حکام کے مطابق بارشوں کا سلسلہ برقرار رہا تو سیلابی پانی قریبی دیہاتوں اور زرعی زمینوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
गुजरांवाला में नाला डेक पिसरोर में तुगयानी के बायस गेपको की 132 केवी पिसरोर जफरवाल ट्रांसमिशन लाइन का एक और टावर गिर गया। ग्रिड स्टेशन से मुतालिक 16 फीडर्स मुतासिर। गेपको की तकनीकी टीमों ने 9 फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। बाकी मांदा मुतासिर फीडर्स में बिजली की फराहमी का अमल जारी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज हेड मोहम्मद वाला पहुंच गई। डीसी मुल्तान की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। सिर्फ इतना कहा कि ज़िले इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करवा लिया जाए। बाद जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मेयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई। मुतासरीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए, उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। साडियां जमीनां ढह गए ने, मुंजी उत्ते ओछल चढ़ गया, मुनियां तबाह हो गई, जमीन कटार तेड़ बर्बाद हो गए ने, कमान तबाह हो गए ने, माल डंगर को जमीनां कोटे यार ढह गई है। हाफिजाबाद में सैलाबी पानी करेला तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। सैलाब की बेरहम मौजों से कोट कुमेर के इलाके बकैन शदीद मुतासिर हुए। कहा हमारे घर फसलें और मवेशी सब पानी की नजर हो गए, सब कुछ दरिया बहा कर ले गया। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपने हल्का इंतखाब नवाब शाह अहमद। कहा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है, हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हों। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,69,000 क्यूसिक, कोटरी बैराज पर 2,66,000 क्यूसिक है। त्रिमो पर पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी जा रही है और मुताल्लिका इदारे हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार हैं। क्वेटा सरियाब रोड पर धमाके में हलाकतों की तादाद 15 हो गई, 38 जख्मी। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुदकुश हमलावर की लाश की बाक़ियात फॉरेंसिक के लिए भिजवाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की धमाके की शदीद मज़म्मत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की बन्नू में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले और लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मज़म्मत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरियाब रोड धमाके में मुलव्विस अनासिर इंसानियत के दुश्मन हैं। हुकूमत कातिलों को सख्त सजा देगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा धमाके में 15 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हुए, 8 अफराद सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। जरूरत पड़ने पर कराची मुंतकिल किया जाएगा। सूबाई वजीर बख्त मोहम्मद काकिर ने कहा कि जिले इंतजामिया ने BNP के अहदेदारों को थ्रेट के हवाले से आगाह किया था। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से अल्लाह ने बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आमजन अस्पताल का दौरा। तिब्बी सहूलियात और मौसर इंतजाम के लिए मौजूद रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म की मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। कहा पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मेयारी सहूलियात को तरजीह दी जाए। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इंसानियत, जंग या अमन में से एक का इंतखाब करे। सदर शी जिनपिंग का जंग अजीम दोम में जापान पर चीनी फदा की यादगारी तकरीब से खिताब। कहा चीन के अवाम अमन के लिए पुरज़्म और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। उनकी तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। चीनी सदर की अक़वाम आलम से तारीखी सानियात को दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावत पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम। चीनी सदर को तंज भरे पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि वो बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। पुतिन और किम जोंग को मेरी नेक ख्वाहिशात दें। अमरीकियों ने खून देकर बैरूनी हमलावरों से चीन को आज़ादी दिलाई। जापान पर फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। चीन ने तारीख की बड़ी फौजी परेड करके दुनिया को अपनी असल ताकत दिखा दी। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग अन थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। फिजाइया, बहरिया और बड़ी फौजी दस्तों की सदर शी को वलवला अंगेज अंदाज में सलामी। फौजी दस्तों के बाजुओं और कदमों में हमाही और महारत पर हर शख्स दम बखुद। शानदार परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश। तैयारों का फ्लाई पास्ट। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज 80 तोपों की सलामी दी गई। परेड के अख्ताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग में हलाक हीरोज को खिराज अकीदत पेश, हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। चीन की जंग अजीम 2 में फतह की परेड में एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक साथ परेड वेन्यू में दाखिल हुए। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाद शुमाली कोरिया के सदर का खैर मकदम किया। परेड के मुआयने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शुमाली कोरिया के रहनुमा करीब करीब नजर आए। ग्रुप फोटो में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल में मौजूद थे। मोदी को परेड में शिरकत की दावत ही न मिली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, पहली बार मार्केट 1,52,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। अंडर इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,52,190 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। आलमी बैंक पाकिस्तान को रवा माली साल मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $2 अरब से ज़ायद कर्ज देगा। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक कर्ज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दिया जाएगा। फंडिंग के जरिए 57 मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी। जापानी मालियाती इदारे जायका का दरियाई सिंध के हिफाजती बंद को बेहतरी के लिए 8 से 29 सितंबर तक सर्वे करने का ऐलान। सर्वे टीम सखर बैराज, राइट बैंक रीजन, ओल्ड आबाद बंद, आकिल लूप बंद सखर और लड़काना का जायजा लेगी। चीफ सेक्रेटरी की पुलिस और रेंजर्स को सर्वे टीम की सिक्योरिटी देने की हिदायत। गूगल और टेक वैली सिंध के 35,000 तलबा को तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध की मौजूदगी में मुआहदे की याददाश्तों पर दस्तखत, मुराद अली शाह का खैर मकदम, कहा PIP2 महज तरबियत नहीं बल्कि एक इनकलाबी पेशरफ्त है। मंसूबे के लिए 1400 मिलियन रुपए मख्तस कर दिए। वज़ीर आला का डिजिटल सहाफ़त के लिए 1000 स्कॉलरशिप्स भी देने का ऐलान, कहा यह मंसूबा जमहूरियत को मजबूत बनाने और झूठी खबरों के खिलाफ लड़ने की काबिश है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी कॉलेजेस में BS प्रोग्राम खत्म। महकमा आला तालीम ने 36 कॉलेजेस की फहरिस्त जारी कर दी। BS प्रोग्राम्स में शामिल मुतादिद मज़ामीन गैर ज़रूरी करार। एलामिया के मुताबिक सूबे में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। जिला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग से 5 अफराद जाँ भाग, हमला आवर फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जाँ भाग अफराद की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान की ATC लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी को अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले उनकी फैमिली साथ खड़ी होगी। बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। इरादों पर हमें यकीन नहीं। सैलाब की आड़ में आटे की कीमतों में इजाफा, लाहौर में 20 किलो का बैग 1800 रुपए और 10 किलोग्राम आटा 900 रुपए में फरोख्त होने लगा। चंद रोज पहले 20 किलो आटे की कीमत 1500 रुपए और 10 किलो की 750 रुपए थी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र आटे की कीमतों में इजाफा किया गया। पंजाब भर में गंदम की कीमत 2600 रुपए फी मन से 3200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। ज़राई तंजीमों ने गंदम की कीमत 5000 रुपए फी मन तक पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया। बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद उस्तोर में वबाई अमराज की लहर, कई गांव मुतासिर, 300 से ज्यादा अफराद हैजे का शिकार, अस्पताल भर गए। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल 2 रोज के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर उस्तोर के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में वबा पर जुज़वी कंट्रोल हासिल कर लिया। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम कर दिए। आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड की बहाली का ऐलान हकीकत न बन सका। अवाम बजट में मख्तस 2 अरब रुपए के रिलीफ से महरूम। 2 माह बाद भी सेहत की सहूलियात न मिलने पर मरीज और अहले खाना परेशान। कैंसर के सैकड़ों मरीज और थैलेसीमिया के 1000 से ज्यादा बच्चे सेहत कार्ड की सहूलत न मिलने के बायस इलाज के लिए दरबदर। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत इंतहा को छूने लगी। एक ही दिन में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 281 जख्मी। इसराइली बमबारी से तबाह शुदा घरों और इमारतों के मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 361, 130 बच्चे शामिल। इसराइली फौज की गजा सिटी में पेशकदमी जारी। लाखों बेघर फलस्तीनी महफूज पनाहगाहों से महरूम। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा जंग को गैर कानूनी करार दे दिया।
ड्यूटी पर आने से इनकार, तुर्क सदर का अमेरिका से फलस्तीनी रहनुमाओं को वीजे देने का मुतालबा, कहा फलस्तीनी वफ्द की जनरल असम्बली में गैर मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। ट्रंप का टैरिफ पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहा अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका गरीब मुल्क बन सकता है। सोशल मीडिया पर मेरी सेहत से मुतालिक खबरें जाली हैं। शिकागो शहर में जराइम पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड भेजेंगे। रियासत इलिनॉय के गवर्नर ने शिकागो में नेशनल गार्ड भेजने का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा शिकागो की सड़कों पर फौजी दस्ते नहीं चाहिए। ट्रंप अपनी करप्शन पर पर्दा डाल